everyone, myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic Fibonacci heap from the subject Design and Analysis of Algorithm. The basic outlines of the today's lecture is what is the definition of a Fibonacci heap, what are the properties of a Fibonacci heap, the difference between a binomial heap and a Fibonacci heap, as well as the basic structure of the Fibonacci heap will be discussed along with the basic operations on Fibonacci heap. One of the operation is creating a new Fibonacci heap, another operation is inserting a node in a Fibonacci heap, and third one is the union of two Fibonacci heaps. Before moving ahead, let me discuss what is the basic difference between a binary heap, binomial heap and Fibonacci heap. In binary heap, we perform various priority queue operations, that is finding the maximum element, minimum element, finding the maximum and minimum element, or inserting an element, deleting an element, increasing the key, decreasing the key, or we are performing an extract min operations. These operations were taking log n time, whereas for finding the minimum and maximum element it takes a constant time. But there is one operation, that is a union operation, which takes order of n time to unite two binary heaps. Hence, therefore, there is an improvement of binary heap to a binomial heap. For performing the union of two binomial heaps, it will take a log n time. Now, in terms of complexity, now what is the difference between a binomial and binary heap? Then I will discuss about the relation with the Fibonacci heap. In a binomial heap, we are following a structure of containing 2 to the power k nodes. But the structure of binomial heap is very much different from the binary heap. Binary heap is basically a structure which follows a binary tree structure. In this, a node contains 2 or more less children, 2 or 1 children. A particular node contains a 2 or less children, whereas in binomial heap there are arbitrary number of children. Now, to discuss about what is a Fibonacci heap, what is the definition of a Fibonacci heap, what are the properties of the Fibonacci heap, as well as what is the difference between a binomial and Fibonacci heap. अब सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं, जैसे बाइनोमियल हीप में हम एक क्रिएटिंग अ बाइनोमियल हीप ऑपरेशन पढ़ते थे, मैं बाइनोमियल हीप से फिबोनाची हीप को रिलेट करते हुए चलेंगे। जैसे बाइनोमियल हीप में हम एक ऑपरेशन पढ़ते थे क्रिएटिंग अ बाइनोमियल हीप, क्रिएटिंग अ बाइनोमियल हीप हमारा एक सिर्फ मेमोरी एलोकेशन था। दूसरा ऑपरेशन हम पढ़ते थे फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट इन द हीप। फाइंडिंग द मिनिमम एलिमेंट कहां मिलेगा? हमें रूट लिस्ट में, क्योंकि हमारा जो बाइनोमियल हीप था क्या, कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज, तो मिनिमम एलिमेंट हमें कहां मिलेगा? रूट लिस्ट में, जिसमें हमें लॉग एन टाइम लग रहा था। उसके अलावा अगर हम यूनियन की बात कर रहे थे तो हमारे पास कोई हीप H1 है, कोई हीप H2 है, दोनों का यूनियन परफॉर्म करने में हमें बेसिकली उसकी रूट लिस्ट में ही कंपैरिजन करना था और उसकी रूट लिस्ट को ही वापस मर्ज करना था। तो जो मुझे log n + 1 और log n + 2 दोनों का जो सम होके ट्वाइस ऑफ log n + 2 मेरा log n टाइम लग रहा था यूनियन में। इसी चीज को अगर मैं इंसर्ट पे आऊं तो कोई भी नोड जब मैं इंसर्ट करता था तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हीप में डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट इंसर्ट करूंगा तो वो 2 की पावर k नोड्स वाली प्रॉपर्टी वायलेट होगी। तो मैं क्या करता था, एक हीप H होगी, जो भी नई नोड इंसर्ट करूंगा वो हीप H डैश होगी, दोनों का यूनियन कर दूंगा H और H डैश हीप का। तो मुझे जैसे ही यूनियन परफॉर्म होगा मेरा log n टाइम लगेगा। ऐसे ही मेरी नेक्स्ट चीज आई कि क्या नाम है, एक्सट्रैक्टिंग द मिनिमम नोड। मिनिमम नोड को एक्सट्रैक्ट करना मतलब एक हीप है कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज, अब कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज है तो मिनिमम नोड को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मिनिमम मुझे रूट लिस्ट में मिलेगा। जैसे ही मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं उस हीप को 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक हीप H और जो पार्ट एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको H डैश नाम के एक हीप में स्टोर कराऊंगा, उसके चिल्ड्रंस को रिवर्स ऑर्डर में, और फिर H और H डैश का यूनियन कर दूंगा जिससे कि मुझे कॉम्प्लेक्सिटी log n मिलेगी। ऐसे ही मैंने डिक्रीज की देखा, डिक्रीज की में वहां पे क्या होता था, मैं डिक्रीज अगर किसी भी नोड की वैल्यू को डिक्रीज किया तो उसको उसके पेरेंट से देखता था, उसको पेरेंट से देखता था और तब तक कंपैरिजन करता चलता था जब तक मेरी मिन ही प्रॉपर्टी फॉलो ना हो रही हो। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस लगता था, तो मैं पूरे ट्री में विजिट करता था, पूरे ट्री में विजिट करता था तो मुझे जितनी ट्री की हाइट होगी उतना ही टाइम लगेगा, मतलब log n। ऐसे ही मैंने डिलीट की ऑपरेशन देखा जिसमें मैं एक्सट्रैक्ट मिन और डिक्रीज की परफॉर्म करता था ऑपरेशन। तो डिक्रीज की में भी मेरा कितना लगेगा, log n, क्योंकि मैं उस ट्री में विजिट कर रहा था, और एक्सट्रैक्ट मिन में भी log n, तो मैं डिलीट की को भी log n कह रहा था। अब मेरा फिबोनाची हीप का स्ट्रक्चर कैसे बाइनोमियल हीप से डिफरेंट है?
बाइनोमियल हीप में मुझे बोला गया कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज, मुझे यह बोला गया कि हर बाइनोमियल ट्री में 2 की पावर k नोड्स होंगे, मुझे यह भी बोला गया कि सारे बाइनोमियल ट्रीज बाइनोमियल हीप के अंदर एक ऑर्डर में होंगे, ठीक है। और एक थर्ड स्टेटमेंट मुझे यह दी गई कि एक बाइनोमियल ट्री एक ही डिग्री का एग्जिस्ट करेगा एक बाइनोमियल हीप में। मतलब सिंपल मैंने क्या क्या फॉलो किया कि मेरे पास सेम डिग्री के बाइनोमियल ट्रीज नहीं होंगे बाइनोमियल हीप में, 2 की पावर k नोड्स होंगी ही होंगी, ट्री की हाइट k होगी, और इसके अलावा मैं जो देख रहा था कि मेरे जो ऑर्डर्ड ट्री होंगे, मतलब बाइनोमियल हीप में पहले b नोट आएगा, फिर b1 आएगा, फिर b2 आएगा, फिर b3 आएगा। अब ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी बाइनोमियल की थी, लेकिन फिबोनाची की प्रॉपर्टीज में चेंज है बाइनोमियल के कंपैरेटिव। अब क्यों है ऐसा, पहले इसे सोचते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे बाइनोमियल हीप में हम डिक्रीज और डिलीट करते थे। डिक्रीज में क्या है, आपस वाले को कंपैरिजन करते हुए, चाइल्ड को पेरेंट से, फिर चाइल्ड को पेरेंट से, फिर इस तरह से कंपैरिजन करते हुए हम लॉग एन हाइट लगती थी हमारी। लेकिन यहां पे क्या है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने अप्रोच चेंज किया। चेंज कैसे है अप्रोच में, कि जहां भी हम किसी भी नोड को डिलीट करें या डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस नोड को कट करके रूट लिस्ट में लगा देंगे। और जैसे ही मान लो कोई भी एक फिबोनाची हीप या बाइनोमियल हीप का स्ट्रक्चर है, B4 एक ट्री बना हुआ है, तो अगर किसी की को डिक्रीज करा तो मैं उसमें क्या करता था, पूरा ट्रेवर्स करते हुए ऊपर तक जाता था कंपैरिजन करते हुए। यहां सिर्फ मैं उस नोड को डिलीट करूंगा और रूट लिस्ट में लगा दूंगा। अब जैसे ही मैंने डिलीट करा, 2 की पावर k नोड वाली प्रॉपर्टी वायलेट हुई, रूट लिस्ट में लगाया तो ऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी वायलेट हुई, और जैसे ही रूट लिस्ट में लगाया तो सेम डिग्री वाली प्रॉपर्टी वायलेट हुई। लेकिन फायदा मुझे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उसको वहां से हटा के वहां पे लगाया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा कि मुझे पूरे ट्री में ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से एक मिनिमम होगा, उस मिनिमम को उससे कंपेयर कर लूंगा, डायरेक्ट मिनिमम आ जाएगा कांस्टेंट टाइम में। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बाइनोमियल हीप वर्किंग एज वेल एज फिबोनाची हीप वर्किंग। आई विल रिपीट इट अगेन। मतलब क्या है सिंपल यहां पे कि जैसे डिक्रीज की में वहां हम एक एक पेरेंट से कंपेयर करते हुए रूट लिस्ट तक जाते थे, वहां लॉग एन टाइम लगता था, उसकी जगह मैं जिस की को डिक्रीज कर रहा हूं उसको वहां से डिटैच करके रूट लिस्ट में लगाऊंगा। जैसे ही डिटैच करा, 2 की पावर k नोड वाली प्रॉपर्टी वायलेट, रूट लिस्ट में लगाया ऑर्डर्ड वाली प्रॉपर्टी वायलेट, और रूट लिस्ट में लगने के बाद जैसे ही ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी वायलेट हुई तो सेम डिग्री के एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो ये मेरा एक फिबोनाची हीप का स्ट्रक्चर निकल के आया। ये तीनों प्रॉपर्टी निकली, प्लस चौथा फायदा जो मुझे हुआ, मुझे लॉग एन टाइम नहीं लगाना पड़ रहा पूरे को स्वैप करने में। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, उसको जिसको डिटैच करके रूट लिस्ट में लगाया, उसको सिर्फ कंपेयर करना पुराने मिनिमम से, तो मुझे मिनिमम को अपडेट करना है। दिस इज बेसिकली द फ्लो प्रोसेस फ्रॉम बाइनोमियल टू फिबोनाची हीप। अब एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। फिबोनाची हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ ट्रीज। अब यहां ट्रीज, ये बात ही नहीं हो रही कि बाइनोमियल ट्रीज, समथिंग स्ट्रक्चर लाइक बाइनोमियल, तो ये सिंपल कलेक्शन ऑफ ट्रीज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मिन हीप ट्रीज। हां, मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, मिन हीप ट्रीज, एंड द ट्रीज इन अ फिबोनाची हीप आर नॉट कंस्ट्रेन्ड टू अ बाइनोमियल ट्रीज। एग्रीड? जरूरी नहीं है कि जो ट्रीज होंगे वो बाइनोमियल ट्रीज ही हों, बाइनोमियल ट्रीज हो भी सकते हैं या नहीं। तो सिंपल सेकंड वाली प्रॉपर्टी से ये क्लियर होता है कि जो ट्री हमारे फिबोनाची हीप में होंगे वो बाइनोमियल ट्रीज हो भी सकते हैं या नहीं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, अनलाइक बाइनोमियल हीप, फिबोनाची हीप कैन हैव मेनी ट्रीज ऑफ सेम डिग्रीज। एग्रीड? बाइनोमियल हीप में हमें क्या बोला गया, एक ही बाइनोमियल ट्री एग्जिस्ट करेगा एक डिग्री का। यहां पे जब आप डिक्रीज करते करते डिटैच कर रहे हो रूट लिस्ट में, तो सेम डिग्री के एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड अ ट्री डज नॉट एग्जैक्टली हैव 2 की पावर i नोड्स। तो यहां तक कंक्लूजन अगर देखें तो हमारे पास फिबोनाची हीप भी एक कलेक्शन ऑफ ट्रीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल ट्रीज हो भी सकते हैं, नहीं भी। दूसरी चीज, एक डिग्री के एक से ज्यादा ट्रीज हो सकते हैं। तीसरी बात, जो भी ट्री होगा उसमें 2 की पावर i नोड्स हो भी सकते हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अ ट्री डज नॉट एग्जैक्टली हैव 2 की पावर i नोड्स। अब अनलाइक द ट्रीज विद अ बाइनोमियल हीप विच आर ऑर्डर्ड, ट्रीज इन अ फिबोनाची हीप आर रूटेड बट नॉट अनऑर्डर्ड। एग्रीड?
तो यहां पे सिंपल हमने 4 कंक्लूसिव स्टेटमेंट, कलेक्शन ऑफ मिन हीप ट्रीज हैं, ऑर्डर्ड ट्रीज नहीं है। अनऑर्डर्ड हो सकते हैं। अनऑर्डर्ड क्यों? क्योंकि डिटैच करके जब रूट लिस्ट में लगाओगे तो B0 B1 B0 B1 B2 फिर B0, ये सब चीजें हो सकती हैं। सेम डिग्री के हो सकते हैं, 2 की पावर I नोड्स होना जरूरी नहीं है। सो दीज आर द 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिबोनाची हीप, जो बाइनोमियल हीप से डिफरेंट है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्रीज है, कलेक्शन ऑफ मिन हीप ट्रीज है। जरूरी नहीं है बाइनोमियल ट्रीज हो, 2 की पावर I नोड्स हो या ना हो, सेम डिग्री के फिबोनाची हीप के अंदर सेम डिग्री के ट्रीज पॉसिबल हैं और ऑर्डर्ड में भी नहीं होंगे। तो एक बेसिक सा एग्जांपल अगर यहां देख लें तो कुछ इस तरह से चीजें हो सकती हैं। सेम डिग्री के एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड हैं और 2 की पावर I नोड्स हैं या नहीं हैं, यह भी हम एक सिंपल सा एग्जांपल इससे ले सकते हैं। एग्रीड? तो ये एक अगर मैं फिबोनाची हीप मानूं। अब नेक्स्ट, ईच नोड स्टोर्स अ डिग्री, हर नोड के पास उसकी डिग्री होगी, दैट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब यहां पे चेंज क्या है? वहां पे हम पहली नोड को हेड H पॉइंट करता था, यहां पे हेड H की जगह जो भी रूट लिस्ट में मिनिमम नोड होगी, मिनिमम की वैल्यू वाली नोड, उसको एक min H नाम का पॉइंटर पॉइंट करेगा। दैट इज min H इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू द मिनिमम नोड इन द रूट लिस्ट। एग्रीड? अब एक चीज सोचो, जिस नोड को डिटैच करके रूट लिस्ट में लगाया था, अब मुझे सिर्फ उसका कंपैरिजन min H वाले से करना है। एग्रीड है? तो सिंपल जब उसका कंपैरिजन मिनिमम वाले से करूंगा तो मेरी जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट ही तो होगी। एग्रीड? तो नेक्स्ट, ईच नोड आल्सो हैज अ मार्क x, अ बूलियन फील्ड इंडिकेटिंग वेदर x हैज लॉस्ट अ चाइल्ड सिंस x हैज मेड द चाइल्ड ऑफ सम अनदर नोड। दैट इज कि जब मैं किसी भी नोड को, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये ऐसा यहां पे कुछ है और इसकी की को मैंने डिक्रीज किया, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको डायरेक्ट यहां पे क्या करेंगे, इसको यहां लगाया और ये चीज मेरी यहां हो गई, इसको मैं मार्क करूंगा, ये मेरा मार्क होगा कि इस नोड ने अपने चाइल्ड को लॉस किया है। एग्रीड? न्यूली क्रिएटेड नोड्स आर अनमार्क्ड एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ चाइल्ड लिस्ट ऑफ नोड x इज स्टोर्ड इन अ डिग्री ऑफ x. This is the basic structure of a Fibonacci heap. That is, this is degree 0, degree 0, degree 1. Agreed? This is a node with degree 3, degree 2. So, इससे हमें यह पता चल रहा है कि अनऑर्डर्ड हैं, सेम डिग्री के एक से ज्यादा ट्रीज इसमें दिख रहे हैं, और नेक्स्ट चीज 2 की पावर I नोड्स होना जरूरी नहीं है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फिबोनाची हीप। अब 3 ऑपरेशंस आज हमें पढ़ने, एक क्रिएटिंग अ न्यू फिबोनाची हीप, दैट इज अ मेमोरी एलोकेशन, सेकंड इज इंसर्टिंग अ नोड इन अ फिबोनाची हीप, और थर्ड इज द यूनियन ऑफ 2 फिबोनाची हीप्स। सो creating a new Fibonacci heap is basically a memory allocation, that is a make Fibonacci heap procedure creates a new empty Fibonacci heap. It allocates and returns the Fibonacci heap object H. That is, a basic memory allocation is done for the Fibonacci heap using a make Fibonacci heap procedure, where n of H is what? The number of nodes in a heap is 0 and min of H is nil. But obvious है, जब number of nodes 0 हैं तो min of H क्या होगा? Nil. Indicates that there are no trees in a heap. This is basically a memory allocation or creating a new Fibonacci heap. This is done using a make Fibonacci heap procedure. Now, the amortized cost of make Fibonacci heap is thus equal to actual cost, that is constant. Agreed? So, amortized cost is equal to actual cost plus potential function. The potential function of empty Fibonacci heap is 0. That is, what is the potential function? Potential function is phi of h is equal to T of h plus twice of mh. And now T of h is the number of binomial trees, जो भी नोड्स रूट में अवेलेबल हैं, दैट इज T of h, and m of h is the number of mark nodes. Agreed? अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल पे तो T of h is equal to 5 and m of h is equal to number of mark nodes, that is 1, 2 and 3. So,
if we calculate the potential function of this Fibonacci heap, then it will be 5 plus 2 into 3, that is 5 plus 6 is equal to 11. 11 is the value of a potential function for this Fibonacci heap. So the potential function of empty Fibonacci heap is this, because T of H is 0, क्योंकि एक empty Fibonacci heap है तो रूट लिस्ट में कुछ नहीं है, T of H is 0 and M of H is also 0, therefore phi of H is equal to TH plus twice of MH. TH is the number of root nodes and MH is the number of the mark nodes. Agreed? So this is the actual running time of creating an empty Fibonacci heap is constant. Agreed? Amortized cost is calculated using the actual cost plus change in potential function. Actual cost was constant because it was a memory allocation, and potential function, if there are no nodes in a tree, then phi h is 0, and phi h is 0 because T of H is 0 and M of H is 0. Therefore, we can simply say that the amortized cost is constant. Now, inserting a node in a Fibonacci heap. For inserting a node in a Fibonacci heap, now what we will do? In binomial heap, we were having this. This is heap H. To insert a node in a binomial heap, we will take another heap H dash and simply have this node. अब इस नोड को हम डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते थे, इसमें डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे तो ये 2 की पावर k वाली प्रॉपर्टी वॉयलेट करती बाइनोमियल हीप के केस में. अब हम क्या करते थे, ये h हो गई, ये h डैश हो गई, h और h डैश का हम यूनियन परफॉर्म करते थे. एग्रीड? और जब h और h डैश का हम यूनियन परफॉर्म करते थे और उन 4 केसेस को अप्लाई करते थे तो मेरा रनिंग टाइम log n आता था. एग्रीड? अब इसमें हमें क्या करना है कि मेरे पास पहले से कोई एक फिबोनाची हीप है, मुझे कोई नोड उसमें इंसर्ट करनी है. अब एक चीज देखें, जब पहले से कोई फिबोनाची हीप है, मुझे एक नोड उसमें इंसर्ट करनी है. मतलब लेट सपोज ये कोई फिबोनाची हीप मेरे पास है. एग्रीड? अब मुझे कोई नोड इसमें इंसर्ट करनी है. अब इसमें चेंज क्या है कि मुझे पहले से मिन ऑफ एच पता होगा. जैसे बाइनोमियल हीप में हम मिनिमम ढूंढते थे, अब जब बाइनोमियल हीप में हम मिनिमम ढूंढते थे तो लॉग एन टाइम लेते थे रूट लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए. अब मुझे पहले से मिनिमम पता है. अब इस हीप में मुझे पहले से मिनिमम पता है, मुझे एक नोड को इंसर्ट करना है. इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली उसे इंसर्ट कर दूंगा और इंसर्ट करके उस नोड के की वैल्यू को पुराने मिनिमम से कंपेयर करूंगा और मिनिमम को अपडेट कर दूंगा. एग्रीड? अप्रोच क्लियर? अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वी विल सिंपली क्रिएट अ न्यू सिंगलटन ट्री, एड टू द रूट लिस्ट. एग्रीड? और वी कैन सिंपली एड इट टू द लेफ्ट ऑफ मिन ऑफ एच और राइट ऑफ मिन ऑफ एच बिकॉज इट इज अ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट. एग्रीड? वी कैन सिंपली एड इट टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, लेफ्ट ऑफ मिन ऑफ एच और राइट ऑफ मिन ऑफ एच. लेफ्ट ऑफ मिन ऑफ एच और राइट ऑफ मिन ऑफ एच, और उसके बाद हम अपडेट कर देंगे मिन पॉइंटर को. एग्रीड? अब इसकी एल्गोरिथम देखते हैं, उसके बाद इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे. अब एल्गोरिथम अगर देखें तो यहीं पे मैं एक एग्जांपल के साथ कि यहां पे कुछ, ये मेरे पास एक फिबोनाची हीप है और ये कोई मार्क नोड है, ठीक है, और इस पे मिन एच असाइंड है. एग्रीड? अब सिंपल मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी नोड मुझे इंसर्ट करनी है, मान लो इसके राइट में इंसर्ट कर दी मैंने, दिस इज द इंसर्टेड नोड. अब जब इस नोड को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसके मिन को और इसको कंपेयर करूंगा और अपडेट कर दूंगा मिन पॉइंटर को. एग्रीड? अब एल्गो देखते हैं, एच कॉमा एक्स. एक्स क्या है? एक्स मेरी वो नोड है जिसे मैं इंसर्ट कर रहा हूं. अब इस एक्स नोड की क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं? एक तो डिग्री, एग्रीड 0, एक सिंगल नोड के पेरेंट भी निल, चाइल्ड भी निल. ये 3 फील्ड सबको क्लियर है, एज इट इज बाइनोमियल हीप में होते थे. लेकिन अगले 2 या 3 फील्ड यहां पे चेंज दिखेंगे क्योंकि चेंज इन प्रॉपर्टीज. जैसा मुझे पता है कि फिबोनाची हीप फॉलोज अ स्ट्रक्चर दैट इज डेटा स्ट्रक्चर दैट इज अ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट.
अब सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है तो एक नोड है, इसके लेफ्ट ऑफ एक्स में भी यही है और राइट ऑफ एक्स में भी यही है, अगर सिंगल नोड की बात कर रहा हूं तो डिग्री मेरी 0, पेरेंट ऑफ एक्स भी निल, चाइल्ड ऑफ एक्स भी निल, लेफ्ट ऑफ एक्स में क्या है, एक्स के लेफ्ट में भी यही है और एक्स के राइट में भी यही है। और नेक्स्ट चीज क्या है कि जो मैंने नोड इंसर्ट करी है वो मेरी न्यूली क्रिएटेड नोड है, तो उसका मार्क क्या होगा, फॉल्स। मार्क तो ट्रू जब होगा जब उसने कोई चाइल्ड लॉस करा होगा, तो न्यूली क्रिएटेड नोड विल ऑलवेज बी फॉल्स। एग्रीड। दीज आर द 6 फील्ड्स, एक डिग्री, पेरेंट, चाइल्ड, लेफ्ट ऑफ एक्स और राइट ऑफ एक्स बिकॉज इट इज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, एंड मार्क ऑफ एक्स इज फॉल्स बिकॉज इट इज अ न्यूली क्रिएटेड नोड। अब ये 4 स्टेप बेसिक काम कर रहे हैं। कंकैटिनेट द रूट लिस्ट ऑफ एक्स विद द रूट लिस्ट ऑफ एच। जो एक्स की रूट लिस्ट है उसे एच की रूट लिस्ट के साथ कंकैटिनेट कर दो। एग्रीड, जैसे मैंने यहां पे किया। अब इफ मिन ऑफ एच इज इक्वल टू निल, अब ध्यान देना, अगर पहले से हीप एम्प्टी है और कोई नोड आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, इफ मिन ऑफ एच इज इक्वल टू निल देन मिन ऑफ एच इज डायरेक्टली एक्स। एग्रीड। अगर हीप पहले से एम्प्टी थी तो जो नोड इंसर्ट करिए वही मेरा मिन ऑफ एच होगा। और सिंपली मैं क्या करूंगा, जो नोड इंसर्ट करिए उसकी की को कंपेयर करूंगा मिन ऑफ एच की की से। तो की ऑफ एक्स इज लेस देन व्हाट, की ऑफ मिन ऑफ एच। अगर ऐसा है तो मिन ऑफ एच की मेरी अपडेट हो जाएगी और नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएंगे, एनएच इज इक्वल टू एनएच प्लस 1। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो लेट एच बी अ इनपुट फिबोनाची हीप, एच डैश रिजल्टिंग फिबोनाची हीप। अब ध्यान देना, जो मेरा एच है उसमें अगर मैं ध्यान दूं तो सबसे पहले टी एच डैश मेरा क्या है, मेरी एक ही नोड तो बढ़ी है और एक नोड कहां बढ़ी है, रूट लिस्ट में, और एम एच डैश तो मेरी नंबर ऑफ मार्क नोड सेम ही है। तो सिंपल चेंज इंक्रीज इन पोटेंशियल फंक्शन क्या होगा, टी एच प्लस 1। ये क्या है, मेरी एक नोड जो बढ़ी है, टी एच प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एम एच माइनस टी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एम एच इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी अमोर्टाइज कॉस्ट आइज की कांस्टेंट। सिंपली मैं इसे ऐसे भी समझ पा रहा हूं, जब मुझे इसमें और इसमें कंपैरिजन ही करना है मिन ढूंढने के लिए, तो कंपैरिजन जो हो रहा है कि ये मिन है, अगली नोड एक्स आई है, एक्स और मिन में कंपैरिजन ढूंढना है, तो बस मेरा मिन अपडेट होना है, दैट इज अ कांस्टेंट टाइम। ये मेरी एल्गोरिथम थी। इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, कोई फिबोनाची हीप है, 21 को मुझे इंसर्ट करना है, मैंने उसको लेफ्ट में इंसर्ट करा। आप लेफ्ट या राइट दोनों में कर सकते हैं, मिन एच पॉइंटर के लेफ्ट में या राइट में। अब सिंपल मेरा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं इसको इससे कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करूंगा। कंडीशन फॉल्स हो गई तो यही मिनिमम रह गया, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये मिनिमम हो जाएगा। एग्रीड। सो द इंसर्टिंग द नोड in a Fibonacci heap takes a constant time. Next, union of two Fibonacci heaps. Now, the union of two Fibonacci heaps कैसे, बाइनोमियल हीप में कैसे करते थे, ये कोई हीप है, ये कोई हीप है, इसको सिंपली हम ऐसे लिखते थे। एग्रीड। और इस पे हम केस लगाते थे, केसेस लगा के इसे कंबाइन करते थे। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनियन है, यूनियन है। और मान लो इसको मैंने मिनिमम दे रखा है और यहां पे इसको मिनिमम है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, क्योंकि मुझे बोला गया अनऑर्डर्ड है, तो मुझे सिंपली इसको अटैच कर देना इसी तरह से। अब मेरा अगला काम क्या होगा, इसके और इसके मिनिमम को आपस में कंपेयर करना, दोनों के मिनिमम को कंपेयर करके मिन एच पॉइंटर मुझे अपडेट करना है। तो सिंपली क्या कह रहे हैं, कंकैटिनेट द रूट लिस्ट ऑफ h1 एंड h2 इनटू द न्यू रूट लिस्ट h, सेट द मिनिमम नोड ऑफ h, सेट NH विद द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो इसकी एनालिसिस अगर देखें, सिंपल मैं कर क्या रहा हूं, यहां मेरे पास 3 नोड थी, यहां मेरे पास 3 नोड थी, कितनी नोड्स हो गई, 6। एग्रीड। तो 6 में से अगर मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा 0 ही आ रहा होगा, चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन। और एक्चुअल कॉस्ट देखूं तो मैं मिन को मिन से ही कंपेयर कर रहा हूं। एग्रीड है। तो क्योंकि मिन से कंपेयर हो रहा होगा तो एक्चुअल कॉस्ट मेरी क्या आ रही है, कांस्टेंट। और चेंज इन पोटेंशियल फंक्शन देखूं तो डायरेक्ट देखूं, फाई एच क्या है, फाई एच माइनस फाई एच प्लस 1, h1 प्लस h2। तो फाई एच मेरा क्या है, दिस टी एच प्लस ट्वाइस ऑफ एम एच जो मेरा लास्ट में आया होगा, और दिस इज व्हाट, दिस इज द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ h1 हीप, दिस इज द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ h2 हीप, और ये मेरा क्या है,
यहां पे TH जो है, TH जो है वो है TH1 प्लस TH2। ऐसे ही जो मेरा MH है वो MH क्या होगा, सिंपल MH1 प्लस MH2। एग्रीड। तो मैं इसमें से जो मेरा कंबाइन होने के बाद आया माइनस मेरा हीप H1 और H2, तो सिंपल कॉस्ट क्या आ रही होगी, 0, और वैसे कॉस्ट क्या है, 1, तो अमोर्टाइज कॉस्ट भी कांस्टेंट। एल्गोरिथम देख लेते हैं और फिर इसका एग्जांपल। फिबोनाची हीप यूनियन H1 एंड H2। एग्रीड। सबसे पहले वही एक एग्जांपल को लेते हुए, यहां पे मिन असाइंड है और यहां पे मैंने इसको मान लिया, यहां पे मिन इसको असाइंड है। ये मेरा मिन H2 हो गया, ये मिन H1 हो गया। अब मुझे पता है H1 H2 को क्लब करके H करना है, तो H में क्या हो गया, मेक फिबोनाची हीप, दिस इज मेमोरी एलोकेशन फॉर द न्यू हीप। एग्रीड। अब जब मैंने नई हीप का मेमोरी एलोकेशन कर लिया, तो नई हीप में जो मिन H1 है, मतलब इस हीप का मिनिमम जो पॉइंटर है उसे मिन H में स्टोर कर लिया। एग्रीड। मैंने हीप के, सिंपल इसको ऐसे का समझें, इसको मैंने ऐसे किया और इसको मैंने मिन H मान लिया। एग्रीड। अब कंकैटिनेट द रूट लिस्ट ऑफ H2 विद द रूट लिस्ट ऑफ H। अब मैंने H2 की रूट लिस्ट को इसके साथ कंकैटिनेट करा। जैसे ही कंकैटिनेट करा, आप सोचना, अगर मिन ऑफ H1 निल है, मतलब H1 में कुछ था ही नहीं, तो बट ऑब्वियस है मिन ऑफ H क्या होगा, H2, मिन ऑफ H2। भाई 4 कंडीशंस हो सकती हैं इसमें। मेरा अगर H2 हीप में कुछ नहीं है, तो जो H1 का मिनिमम होगा वही मिन ऑफ H होगा, जो कि यहां से क्लियर हो रहा है। अगर H1 हीप में कुछ नहीं है, तो बट ऑब्वियस है जो H2 का मिनिमम होगा वही मेरा मिन ऑफ H होगा, जो मेरा इस कंडीशन से क्लियर हो रहा है। एग्रीड। और थर्ड कंडीशन, जब मेरा H1 और H2 हीप के मिनिमम है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, और मिन ऑफ H2 नॉट इक्वल टू निल। एग्रीड। एंड मिन ऑफ H2 लेस देन मिन ऑफ H1। अगर मिन ऑफ H2 लेस देन मिन ऑफ H1 है, तो मिन ऑफ H में क्या आ जाएगा, H2। और अगर ग्रेटर देन होते तो बट ऑब्वियस यहीं पे। समझ पा रहे हैं, चारों कंडीशंस इन 5 स्टेप्स में कवर हो रही हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर एक हीप H1 है, एक हीप H2 है, हीप H1 अगर एम्प्टी है तो मिन ऑफ H में मिन ऑफ H2 आ जाएगा। हीप H2 एम्प्टी है तो मिन ऑफ H में मिन ऑफ H1 आ जाएगा। अगर मिन ऑफ H1 और H2 दोनों हीप एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर H2 वाला मिनिमम है तो इसके थ्रू अपडेट होगा यहां से। अगर H1 ही मिनिमम है तो यहां पे अपडेट हो ही रहा है। नेक्स्ट NH में स्टोर कराएंगे NH1 प्लस NH2, और H1 H2 के ऑब्जेक्ट्स को हम फ्री कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे H। सो मिन को कंपेयर करने में कांस्टेंट टाइम। अब इस एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, ये कोई हीप थी H1, ये कोई हीप थी H2। सिंपली मैंने क्या करा है, इसको आपस में अटैच कर दिया। अटैच कर दिया तो मुझे करना ही क्या था, 17 वाले को 3 वाले से कंपेयर करना था, दोनों में जो मिनिमम आना था उसको अपडेट कर देना था, जैसे यहां पे हमने अपडेट कर रखा है। तो सिंपली मैंने अटैच क्या कर दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। बस इसको जैसे ही इसके साथ जोड़ा तो सिंपली दोनों के मिन पॉइंटर्स को हमने क्या नाम है कंपेयर करा और मिन को अपडेट कर दिया। सो द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर creating a new Fibonacci heap takes constant time, for inserting a node in a Fibonacci heap takes constant time, or for performing the union of 2 Fibonacci heap also takes constant time, because of the properties of Fibonacci heap that it contains, it may or may not contain 2 की power k nodes, because Fibonacci heap is unordered and it can also have trees of same degrees. Thank you. Hope you all have understand this lecture. Thank you everyone.